Okay, so class 9th exercise 4.2. Okay, the topic is solution of a linear equation. तो सबसे पहले चीज समझते हैं सॉल्यूशन क्या होता है. वो द टर्म सॉल्यूशन डिफाइंस हियर. Okay, so the term solution defines here that at what points the equation ax plus by equal to c या ax plus by plus c equal to 0 satisfy. Okay, for what values of x and y this equation satisfied. Okay, these values of x and y is known as the solution of this equation. Let's suppose you have for example you have an equation 2x plus 3y is equals to 5. Okay, so for how many values of x and y, yeah, for what values of x and y, the answer is 5. Okay, the answer is 5 for this equation, or otherwise you can change the side, plus 5 side change the minus 5. For how many values of x and y, the answer is 0. Okay, or for this equation. So these values of x and y are known as the solution. Okay, now look, I am putting somewhat values like x equals to 1 and y equals to 1 in this equation. So 2 1s are 2 plus 3 1s are 3. So 2 plus 3 5 और equal to में भी 5 चल रहा था, दोनों equal आ गए. That means this is the solution. That is 1 comma 1 is the solution of the given equation. Okay, okay, but let I have put another point here like x1 and y is equals to 2. Okay, so 2 1s are 2 plus 3 into 2 minus 5. ठीक है, 2 1s are 2 plus 6 minus 5. 6 minus 5 1, 2 plus 1 3, which is not equal to 0. Okay, ये दोनों तरीके हैं, किसी भी मेथड से आप करो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, अगर मान लो ये x और y, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 में यहाँ पर पुट करता तो 2 into 1 plus 3 into 1 minus 5. So 2 plus 3 minus 5, that is 0, and 0 equal to 0. Okay, therefore 1 comma 1 is the solution of this equation. But when I put the value of x is 1 and the value of y is 2, I am getting the answer is 3, which is not equal to 0. Therefore the coordinates 1 comma 2 are not the solution of this equation. Okay, एक चीज समझते हैं बहुत अच्छे से डीप में. ठीक है, सभी फोकस रखे बोर्ड पे. As you all know about that a line, this equation represents a line. Okay, ना इस पॉइंट को नोट कर लें आप. ax plus by plus c equal to 0. ax plus by plus c equals to 0. This standard form represents a straight line. ओके, ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, अब जो इक्वेशन थी आपकी वो मैं लेने वाला हूं. यहाँ पर क्या थी, 2x plus 3y equals to 5. और इस इक्वेशन की हेल्प से मैं यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूँ. ठीक है, तो यू if you want to draw the graph you have to put some values of x and y. Okay, तो x की वैल्यू आप आपके मन से कुछ भी रख सकते हैं. लेट सपोज अगर मैंने x को 0 रखा तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मैंने x को 0 पुट किया तो 2 into 0 plus 3y equals to 5. तो 3y equals to 5. So the value of y is 5/3. Okay, that is 1.6 या 1.7 ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 1.6666 1.7 ले लिया.
ठीक है. When I put the value of x is 1, so 2 into 1 plus 3y equals to 5. So 2 ones are 2 plus 2 side chain to minus 2. So 3y equals to 5 minus 2. So the value of 3y is equals to 3. So the value of y is 3 by 3. That is 1. Okay. तो इस टाइप से आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे इक्वेशन में, है ना. तो मैंने जैसे यहाँ पर वैल्यूज पुट की, लाइक एक बार y को 0 पुट कर दिया तो x की वैल्यू आ गई 2.5. ठीक है. फिर एक बार -1 पुट कर दिया, है ना. x को पुट किया -1 तो -2 प्लस 7 तो आ जाएगा 2.3. ठीक है. देन मैंने +2 पुट कर लिया एक बार x को. ठीक है. 2 4 प्लस 4 साइड चेंज किया तो -4, 5 -4 1, तो 1/3 दैट इज 0.3. और लास्ट एक -2 पुट कर लिया. तो -2 जैसे मैंने पुट किया x को तो -4 साइड चेंज किया तो +4, तो 5 + 4 9, 9/3 दैट इज 3. ओके. सो दीज आर सम पॉइंट्स. अब क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे. तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ये -1, ये -2, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4. ठीक है. y की वैल्यू चेक करेंगे तो y की वैल्यू सारी पॉजिटिव ही आ रही है अभी तक. तो ये 1, ये 2, 3, 4. ठीक. नाउ you have to identify the points, you have to locate the points on the graph. Okay, as I already explained you in chapter 3 how to plot the graph, how to locate the coordinates of any point on the graph. So first point is 0, 1.7. So the value of x is 0 on y-axis. So 1.7 you will get here. Okay. Now the value of x is 1 and the value of y is 1. So you'll get it here. Okay. Now the value of y is 0 and the value of y is 0 and 2.5. Value of x is 2.5. The value of x is -1. Okay. And the value of y is 2.3. X is -1 and the value of y is 2.3, somewhat here. Okay. Now the value of x is -2 and 3, somewhat here. Okay. Now the value of x is 2 and the value of y is 0.3, so somewhat here. तो देखो ये जो पॉइंट्स है इससे आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है. ठीक है. ये थोड़ी सी एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि ये मैंने रैंडमली ड्रॉ किए हैं. ओके. आई होप सबको समझ में आएगा. तो आपको ये इस इक्वेशन से हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है. ओके. सो as I have drawn a graph here. Okay. I'll draw one more graph to show you the solution. Okay. Like the equation here is y equals to 3x plus 5. This is the equation. Okay. Now for drawing the graph, what you to do? You take some values. Okay. So when I put it, the value of x is 0, I get the value of y is 5, x is -1, so the value of y is 2, plus 1, the value of y is 8, minus 2, the value of y is -1, and plus 2, the value of y is 11. Okay. Now this is the points here. Now for these points I have to I have to draw a graph here. Okay. So for that graph, okay, I have drawn axis here. The value of y is -1 and here up to 11. Okay. Now for divisions, that is -1, -2,
+1 +2 +3 +4 +5 -1 1 2 3 4 5 6। तो ये पॉइंट मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि 11 y पे मिल नहीं रहा है अभी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द पॉइंट 0,5। ओके, तो एक पॉइंट में और इंक्लूड कर लेता हूँ जिसमें मैं y को 0 पुट कर देता हूँ। तो y को मैं 0 अगर पुट करूंगा तो x की वैल्यू आएगी -5/3, दैट इज -1.7। ओके, so look, the value of x is 0 and the value of y is 5, so you'll get a point on the y-axis here. This is your first point. Now the value of x is 1 -1 and the value of y is 8. तो ये पॉइंट भी आपको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। 1 8 -1 and 2, तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 2, you will get this point here. Okay, now the value of x is -2 and the value of y is -1, this point here. Okay, now the next one is the value of y is 0 and the value of x is -1.7. So here, okay, so after joining these points, you will get a straight line here. Okay, you will get a straight line. Okay, so you have to write the equation here, y equals to 3x plus 5. तो अब देखो सॉल्यूशंस की बात करते हैं बेटा। तो सॉल्यूशंस क्या होंगे यहाँ पर? all points which lies on given line are solutions of that line. तो जितने भी पॉइंट्स हैं जो कि उस लाइन पे लाई कर रहे हैं उनको उस लाइन का सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, अब उस लाइन का सॉल्यूशन पता है आपको कितना आएगा? क्या क्या आएगा? जो पॉइंट्स आपके पास हैं, एक तो क्या है ये 0,5 है, फिर यहाँ पर क्या है -1,2 है, फिर यहाँ पर क्या है -2, -1 यहाँ पर आएगा, -2, -1 एंड -1.7, 0। सो दिस आर द सॉल्यूशंस। पर बेटा देखो आप, ये जो लाइन है, ये पॉइंट भी तो है, यहाँ पर भी तो कुछ वैल्यू होगी x की और कुछ y की वैल्यू होगी, है ना? ऐसे ही इस पॉइंट पर भी कोई x की वैल्यू होगी और कोई y की वैल्यू होगी, है ना? तो इस लाइन के सॉल्यूशन कितने होंगे? इस लाइन के सॉल्यूशन कितने होंगे? हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर ऑन द लाइन? देखो सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं। या तो फर्स्ट क्या हो, यूनिक सॉल्यूशन हो, या सेकंड क्या हो, नो सॉल्यूशन, या थर्ड क्या हो, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो अभी जो आपके पास लाइन है इसमें आपको इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे हमेशा। ऐसा क्यों? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन क्यों मिलेंगे? उसका रीजन समझो बेटा। उसका रीजन ये है कि अगर x के प्लेस पे, जो इक्वेशन है आपके पास, इसमें x के प्लेस पे आप क्या पुट कर सकते हो? तो यहाँ पर x के प्लेस पे आप कोई भी नंबर जो आपकी इच्छा वो पुट कर सकते हो। नंबर्स जो आपके पास है वो कितने होते हैं? इनफाइनाइट। तो अगर x के प्लेस पे आप इनफाइनाइट नंबर्स पुट करोगे तो y के प्लेस पे भी आपको इनफाइनाइट नंबर मिलेंगे, हाँ या ना? तो इस कंडीशन में आपको मिलेंगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। क्या मिलेंगे? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। हाँ, अगर y ऐसा होता, y इक्वल्स टू 5 है, ठीक है, तो इसमें x है भी नहीं। तो अगर मैं x को 0 पुट कर दूं, x को 1 पुट कर दूं, x को 2 पुट कर दूं, x को 100 पुट कर दूं, या x को -100 पुट कर दूं, y के प्लेस पे हमेशा 5 ही आने वाला है, तो इसको बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन, है ना? हमेशा एक ही सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, हमेशा एक ही सॉल्यूशन आएगा, y इक्वल्स टू 5, ओके, एक ही वैल्यू आएगी, इसलिए इसको बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन, है ना? बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर भी आपके पास इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। कैसे? समझो इस चीज को। आपको यहाँ पर y से मतलब नहीं, आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेट से मतलब है ना? देखो आप, पहला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0,5, द सेकंड कोऑर्डिनेट इज 1,5, द थर्ड कोऑर्डिनेट इज 2,5। so there are infinite coordinates like this,
so there are infinite many solution, है ना? तो आपको जो भी इक्वेशंस यहाँ पे मिलने वाली है उन सबके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे. Yes, so note one point. When you'll get y equal to a constant, है ना? When y equal to constant, है ना? जब भी आपको y equal to एक constant मिलने वाला है, then the line is parallel to x axis. ओके, तो जो आपको लाइन मिलेगी वो लाइन पैरेलल होगी किसके? x एक्सिस के. ओके, एंड व्हेन x इक्वल टू कांस्टेंट, व्हेन x इक्वल टू कांस्टेंट, you will get a line which is parallel to y axis. Okay,